There was a press article also on very few ICU beds available and all of them being choked and so on, right? That's a problem which is not only in Kolkata, across the country, that we have lesser beds. We saw that in COVID also, that there were fewer beds than what is required. So that's a big problem, and hence to expand that capacity, if you start building hospitals, corporate hospitals, you'll spend about 1 to 1.5 crore rupees per bed, right? So a 100 bed का hospital बनाने के लिए about it'll take about 150 crore rupees, right? This is a lot of money, and if that is invested, then obviously people will have to get returns out of it, which means the price will also be commensurate to that, right? And hence these hospitals should be doing very high-end acute intervention, life-saving interventions, because that's what they should be doing. That's what the country also needs. But there are other healthcare needs and significant others which are required. So that's where we come into pictures. That's one. The second is कि हमारे पास इतने doctors ही नहीं है. We don't have so many doctors in the country, and hence doctors' time, the super specialist time should be spent in doing those super specialized interventions, acute interventions, life-saving interventions. For everything else, you should come outside of the hospital, right? So hospitals for saving lives, out of hospital for quality of life improvement, and sustained chronic improvement, as well as sustaining chronic kind of patient, especially the elderly people. Again, Kolkata has, as a percentage of the total population, the highest number of elderlies amongst the metros, and that also came in one of these articles. And hence it becomes even more important for such places to have the out of hospital care thing, because hospitals can't solve all the problems. We all know hospital के अंदर जाएंगे 3-4 दिन के अंदर intervention होगा, उसके बाद you can't stay in the hospital for a long period of time. Whenever we have gone inside the hospital, 2-3 दिन के बाद, you will not feel good, right? The patient will also want to get out of the hospital. The family would also want to get out of the hospital. Now, if you don't have anything to fend for, कोई infrastructure available नहीं होएगा, then you'll have to stay in the hospital. There's no choice. So many years ago, we launched home health care in the city, and now we are launching transition care, which essentially now basically the requirements of the patient can be addressed in multiple ways. One, with these centers, which you will see how we cater to the kind of the requirements of the patient. Dr. Gaurav will talk about. Also, this becomes a transition to the home. So we now would cover the whole gamut of out of hospital. So, especially talking of the transition care centers, because of which we are here today, we are now having about 300 beds, with this facility adding about 44-45 beds, in the city. So overall, roughly around 300 beds in the country, and our idea is to take this to a much larger number, right? 1,500 to 2,000 beds for across the country, and that will create capacity for the country.
is not aggregation of capacity, is actually creating capacity for the country, right? And that is our vision, that we continue to become the largest player in the, or continue to remain the largest player in the country, doing these transition care centers, doing this the variety of things which can be done in these centers, which is inpatient rehab, long-term acute care, skilled nursing requirements. Dr. Gaurav will probably talk about in more details, and you'll see that. But it's basically something which is globally also very very prominent. So in the US, for every tertiary care bed, there is a transition care bed. And think of India. India has thousands of tertiary care beds, but this industry has not developed, and it's starting to build up with us being the largest player. So we have 300 beds, which means there's immense opportunity, and then there's an immense requirement also, right? The kind of cost for long term care which people will have to bear otherwise is huge. अगर hospital में रहेंगे, so it could be a very high number per day, which will be significantly reduced in this case for the payer, right? The payer could be the patient by themselves. India में largely people pay out of pocket, or even for the insurance or for the schemes as well. The cost of healthcare itself will reduce, and that is very very critical, right? For India as a country, access will improve because these centers can be increased or built up faster, with much less capital expenditure, about a 1/10 of what is required in the hospital. So ये बहुत सारे बन सकते हैं. Starting, we started East India with Kolkata, but we could, within Kolkata there could be many of such centers, and as we expand our presence, these centers will become the hub for going into eastern northeast belt as well, and some of these places may also be able to absorb similar kind of centers. But this is the entry point to that area. So that's the reason why we are there. Improve quality of life, improve outcomes of the customers, uh, and reduce, increase access and affordability while giving standardized outcomes. That's the things which we are solving for. Stop there and hand it over to Dr. थैंक यू। How much it will cost? आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ईस्ट इंडिया के पहले ट्रांजिशन केयर सेंटर में आए। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम सब लोग इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग खुद ड्राइव करके यहाँ पे आए, खुद बैठे हैं, सुबह खुद तैयार हुए थे। जस्ट इमेजिन करिए कोई एक ऐसा इंसान जिसको या तो ब्रेन अटैक आता है, लकवा मार जाता है, राइट, और वो अपने आप से इंडिपेंडेंट ही नहीं है। वो खुद खाना नहीं खा सकता, वो बेड से नहीं उठ सकता, वो अपने कपड़े नहीं पहन सकता, जो कि हमारे बेसिक पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हेड इंजरी होती है, उसको रीढ़ की हड्डी की इंजरी होती है, और वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं। ऐसा पेशेंट एक हॉस्पिटल में जल्दी से ले जाया जाता है, एम्बुलेंस से ले जाया जाता है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन उसके बाद 10 दिन 2 हफ्ते में उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है, उसके नाक में एक ट्यूब होती है जिससे उसे खाना खिलाते हैं, उसके यहाँ पे ट्यूब होती है जिससे वो सांस लेता है, उसके यूरिन के लिए कैथेटर होता है, राइट, वो बेड पे मुड़ भी नहीं सकता। क्या वो पेशेंट अगले दिन फिर से अपनी जॉब पे जा सकता है? क्या वो अपनी फैमिली के लिए उतना ही प्रोडक्टिव बन सकता है? द आंसर इज नो। तो पेशेंट कहाँ जाएगा? क्या फैमिली अपने और सारे काम करते हुए इस पेशेंट की देखभाल करके उसको नॉर्मैलिटी पे ला सकते हैं? तो क्या होता है, ये पेशेंट घर पे पड़े रहते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, जिसके कारण ये फिर से हॉस्पिटल जाते हैं और खर्चा होता है। लेकिन ट्रांजिशन केयर एक ऐसी जगह, और वो कैसे होएगा? क्योंकि आप यहाँ पे रिकवर होने के लिए आए। यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यहाँ की जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी लैब है, रेस्पिरेटरी थेरेपी लैब है, हमारी बैलेंस लैब है, वो सबसे हम आपको दिन में 2 से 3 बार इतना अच्छा रिहैब और रिकवरी का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करोगे, आपकी फैमिली भी पार्टिसिपेट करेगी। एंड द एम वुड बी ओनली वन कि आप जल्दी से जल्दी, अगर लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़ा होना शुरू हो जाओ, खड़े हो रहे हो तो वॉकिंग करना शुरू कर दो, और आज से 1 महीना 1.25 महीना के अंदर आप इस सेंटर से बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप हॉस्पिटल जाने से पहले थे वैसा वॉक कर सके। उसके लिए की इंग्रेडिएंट्स क्या है? यहाँ का जो रिहैब सेंटर है, आपने बहुत सारी फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स देखी होंगी,
हॉस्पिटल में भी फिजियोथेरेपी। लेकिन यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, और जब हम आपको लेके जाएंगे, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और हम आपको लेके जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट है, जो कि हमें एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक एक हॉस्पिटल के अंदर से बहुत डिफरेंट बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे विवेक ने बोला, हम हॉस्पिटल में घुसते हैं और बिल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, राइट। बिल बढ़ते हैं, फैमिली वहां वेटिंग एरिया में बैठी होती है, पेशेंट अंदर या आईसीयू में होता है या वार्ड में होता है, वहां पे फैमिली जा ही नहीं सकती है। यहाँ पे फैमिली पेशेंट के साथ रह सकती है, उसी के कमरे के अंदर रह सकती है, पार्टिसिपेट करती है। साथ में फैमिली को सिखाया जाता है कि जब आप पेशेंट को घर लेके जाओगे तो आपको और क्या चीजें करनी है कि दोबारा कॉम्प्लिकेशन ना आए। और जो बिल वहां पे लाखों के बनते हैं, यहाँ पे एक पेशेंट जब आता है तो शायद 10 से 11,000 रुपए प्रतिदिन का बिल होगा, जो कि शायद जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता जाएगा, 1 ट्यूब निकल गई, 2 ट्यूब निकल गई, 3 ट्यूब निकल गई, मैं चलने लगा, उसे उतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रीटमेंट की, और शायद एंड में 2-3 हजार रुपए पर डे का उसका बिल होगा, राइट, जिससे कि उसकी इंप्रूवमेंट भी होगी, उसका पैसा भी कम खर्च होगा। बिकॉज ये जो ट्रांजिशन केयर सेंटर है, ये एक्सपेंसिव प्लेसेस नहीं है, यहाँ पेशेंट लंबे समय का रहता है, और इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम आपको रूम्स दिखाएंगे, ये हॉस्पिटल जैसे नहीं है, ये घर जैसे, यहाँ उनको घर जैसे लगना बहुत जरूरी है। तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप फैमिली को साथ में रखिए, आप बच्चों से मिलिए, आप अपने घर की फोटोज ला के रखिए, ताकि आप जब 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना यहाँ पे रहें तो आपको घर जैसा लगे, और इसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो HCH का ये एक उद्देश्य है कि 95% हमारी जिंदगी जो होती है वो हॉस्पिटल से बाहर होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम सारा टाइम उस 95% जिंदगी में बिल्कुल ठीक होते हैं। तो चाहे हम घर पे हो, चाहे हम इस सेंटर के अंदर हो, चाहे हम डिजिटली कनेक्टेड हो, रिमोटली कनेक्टेड हो, राइट, लेकिन HCH का ये उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, आप हॉस्पिटल के अंदर अगर नहीं जरूरत है तो मत जाएं, और सिर्फ जब जान बचानी है, जब कोई सर्जरी करनी है तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़नी चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। Now, what is the yeah? So typically, would you want to take this? So to open such centers, it will cost about 5 to 6 crore rupees. 50-bedded center, which is think of उतने में सिर्फ 3 बेड बनेंगे corporate hospital में, 4. So it's a significant cost reduction, about 1/10 to the cost of the hospitals, right? And that's why you can price it also well for the customer. अगर आपने पैसा ही इतना लगा दिया तो आपको रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना, और What is your target people who are coming to your door? So as I told you, patients who have, जिनको ब्रेन या स्पाइन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, राइट, ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है, लकवा हो सकता है, स्पाइन की इंजरी हो सकती है, उसके कारण आपके दोनों पैर नहीं चल रहे हैं, हो सकता है हाथ नहीं चल रहा हो। पेशेंट्स जिनको पार्किंसंस डिजीज होती है, कल हमने वर्ड पार्किंसंस बनाया, राइट, वो पेशेंट जो कि उनको बैलेंस ट्रेनिंग करनी होती है, पेशेंट्स जिनको शायद सिर्फ इसलिए यहाँ पे आना है कि हॉस्पिटल के आईसीयू में उनको लंबा स्टे लेना था, हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस होती हैं, लंबा स्टे के लिए हॉस्पिटल बने ही नहीं है, तो हमारा जो यहाँ पे स्टेप डाउन आईसीयू या लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर है, वहां पे वेंटिलेटर बाईपैप के साथ भी पेशेंट लंबे समय तक रह सकता है। फिर आपको सिर्फ इन्फ्यूजन है, आपको मे बी डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुई, या बुखार हुआ, नॉर्मल निमोनिया हुआ, और आपको सिर्फ इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो आज की डेट में पेशेंट डरता है कि मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाऊंगा और उसके बाद मुझे पता ही मैं कहाँ गायब हो जाऊंगा और फिर एक मोटा बिल लेके बाहर आऊंगा। उन सब के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल से पहले और हॉस्पिटल के बाद ये सेंटर्स बने हैं, चाहे आपको नर्सिंग फैसिलिटीज चाहिए हो, चाहे आपको रिहैबिलिटेशन चाहिए हो, चाहे आपको कीमोथेरेपी चाहिए, राइट, ऐसे सेंटर्स में हम लोग कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जो बैंगलोर और हैदराबाद के सेंटर हैं, गुड़गांव के सेंटर है, वहां हम डायलिसिस भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको डायलिसिस की भी जरूरत होती है जब उनको लकवा मार जाता है, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही, आई वुड से, अफोर्डेबल तरीके से हम इन सेंटर्स में कर पाते हैं विद बेस्ट ऑफ द रिकवरीज। Like How many centers you have? টার্গেট আছে মানে How many time for target and then Sorry, I didn't get your question. बोलो तो प्रश्न have you any time and target it may be or 1 month 2 months this kind of सो आमतौर पे स्ट्रोक में देखा गया है कि जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो हम ये बोलते हैं गोल्डन आवर होता है, आप सबने सुना होगा गोल्डन आवर होता है। उस गोल्डन आवर में अगर आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपको उतना ही वीकनेस के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब स्ट्रोक हो जाता है तो पहले 100 दिन जो है वो गोल्डन बन जाते हैं। सो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि जैसे ही आप 7वें दिन 10वें दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, अगर आप 1 महीना यहाँ पे बिताते हैं तो हम आपको
पूरी कोशिश करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि 1 महीने में आप कम से कम चलने फिरने लग जाए, अगर आप एक यंग स्वस्थ पेशेंट हो जिसको स्ट्रोक हो गया या जिसको की हेड इंजरी हो गई. To answer your question, we have six centers as of now. India. Do you think the market size of this space? So market size for the out of hospital would be in the 35 to 40 million In India. And like we can see, information separately. like can we say It is this written is, here the 21.3 billions 2027 target General markets. market value. So I am talking of the out of hospital, which is even larger than the transition care, right? That's a bigger market. So this would be the transition care market. like For the middle class and upper middle class kind of market. So if you think of it, right? Corporate hospitals के rates अगर हम let's say ICU में होते हैं किसी corporate hospital के, I'm sure you guys know the rates, but for 50,000 rupees to a lakh rupees per day के हिसाब से billing हो जाती है, right? यहाँ पे what Dr. Gaurav said, the maximum was 10-11,000, right? Which is about 1/5 to 1/10 10,000 per day. per day. That is the maximum when you're fully tubed, etc., etc. और वो reduce होके 2-3,000 तक भी जाती है, which is very जितना दिन इधर में रहेगा, जितना दिन इधर में रहेगा, टोटल उसमें हर रोज हर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो कम होता जाएगा because the intensity will continue to reduce. इम्प्रूव हो रहे हो ना. अगर मैं आपको बिल्कुल कंपैरिजन दूं, तो अगर एक सिंगल बेड हॉस्पिटल का बेड रेंटल 10 से 15,000 रुपए इस शहर में होगा, तो हमारे यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4,000 रुपए बेड रेंटल होगा, राइट? अगर वहां पे कंज्यूमेबल्स की, लैब की, फार्मेसी की कॉस्ट हजारों में आएगी, तो हमारे सेंटर में क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इंप्रूव हो जाता है, 2 से 2,500 रुपए शुरू में आएंगे, राइट? इसके अलावा जो जितना मैंने आपको इतने सारे लोगों की केयर बताए, जिसमें 24/7 डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इन सबकी केयर को भी अगर मैं मिला दूं, तो पूरे दिन में 3,500 से 4,000 से ज्यादा की खर्चा नहीं आता. So that is the neck to neck comparison which I am trying to do. So this is Will actually they get the focused. স্বাস্থ্য সাথী felicitation মানে পরিষেবা স্বাস্থ্য সাথী পরিষেবা Government. स्वसारथी अभी शहर में आए हैं, हमें लाइसेंसेस अभी मिले हैं, राइट? हम इस सेंटर को पहले NABH कराएंगे, फिर NABH जैसे ही कराएंगे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी अप्लाई करेंगे और हम इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे. अभी इंश्योरेंस नहीं है, अभी इंश्योरेंस का सुविधा नहीं है इधर. इस सेंटर में नहीं है, लेकिन हमारे बैंगलोर सेंटर में, हमारे हैदराबाद सेंटर में, बिकॉज वो पुराने सेंटर्स में NABH खुल चुके हैं. तो वी वांट कि हम आज की डेट में हम ये पहले चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम क्वालिटी मार्क NABH जिससे कि लोग पहले ही बोल सके कि नहीं यार ये क्वालिटी के साथ काम करते हैं, उसको लाए. उसको करने से हम साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट की तरफ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप NABH के साथ जाते हो तो और आसान हो जाता है इम्प्लीमेंट करना. टू पुट इट इन दिस प्रिटेक्स्ट, हम चाहते हैं कि हम स्कीम्स के साथ काम करें, हम चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस के साथ काम करें, हम बाकी जगह पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी करें. Do you think this concept is very new in Kolkata and how it exists? So this concept I think is very new in the country itself, right? Our first center started 7 years back in Hyderabad, and it was a center alone for say 2 to 3 years before the market realized that this is a concept which does not exist. And at one point of time, Hyderabad had 27 such centers. Right. Similarly, today there are organized players in Bangalore which have, between us and the other players, we have around 6 to 7 centers. Hospitals like Sakra, Manipal, right? They have their own such centers also, but very few because they focus largely. But for this part of the country, I think this is the first. And मैं जिससे भी बात करता हूँ, चाहे मैं बड़े से बड़े न्यूरो सर्जन से बात करूँ, चाहे मैं किसी हॉस्पिटल हेड से बात करूँ, वो सब यही कहते हैं कि यार there is a need, there is a big need because हम सब लोग, आप चाहे कुछ भी पैसा बोलिए, हॉस्पिटल में पैसा जब आपने लगा दिया तो जान बची, लेकिन दोबारा खुद पैसा कमाने के लिए तो उस लायक बनना पड़ेगा ना. हमारे पास एक पेशेंट था जो कि हमारे पास सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि उसे सिग्नेचर अपने दोबारा खींचा गया. हमारे पास पेशेंट इसलिए रहते हैं कि वो दोबारा अपनी शर्ट पहन सके. तो जब आपको दोबारा प्रोडक्टिव होना है, दोबारा अपनी सैलरी कमानी है, अपना बिजनेस करना है, तो इस सेंटर के अलावा तो और भी जगह कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया में. there are people who call themselves as competition, but वो the way we work and the way they work is very very different, right? तो उन्होंने
मैं दिल्ली के इतने पैसे दे रहा हूँ, आप ये नहीं बोलते मैं डाइलिसिस के इतने पैसे दे रहा हूँ, राइट? आप सिर्फ सर्जरी के पैसे दे रहे हो, आप रिकवरी के पैसे दे रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे जो पेशेंट आता है, तो जो वर्स्ट कंडीशन में पेशेंट आएगा वो शायद ऑक्सीजन पे होगा या बाईपास पे होगा, इतनी सारी ट्यूब्स होगी। तो हम ये कहते हैं कि पहले उसको जो हम शायद बाईपास ट्रीटमेंट उसको देंगे, फिर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन पे जब वो हील होएगा तो हम उसको ट्रिटॉक्सिन केयर देंगे, हम उसको एनजी केयर देंगे, हम उसको सपोर्टिव केयर देंगे, हम केयर की स्टार्ट करते हैं। अनलाइक जो बाकी नर्सिंग होम्स या सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं, बेड चार्जेस इतने हैं, उसके ऊपर नर्स चार्जेस, ऊपर डॉक्टर चार्जेस, ऊपर फिजियोथेरेपी चार्जेस, इस तरीके से हम लोग काम नहीं करते। सो हमारा काम करने का तरीका इस तरह का है कि पेशेंट मोटिवेट हो, पेशेंट को लगे ओह एक चीज और हो गई, मैं और ठीक हो गया और मेरा खर्चा भी कम हो गया। तो इस तरीके से हम